everyone, myself Khyati Vyas from JMP English Medium Saraswati Group of Education. Today I am conducting this session for grade 3, subject SS. We are dealing with chapter number 3, Knowing Our Earth, and this is my session number 2 for this chapter. So kids, in our previous session, that is session number 1, I had already introduced to you few vocabulary words with the help of PPT. Then we also learned regarding the chapter. What did we learn in the chapter? We learned that Earth is the only planet in the solar system which supports life. Then I also told you that the surface of the Earth, it has land and water bodies, but 2/3 of the surface is covered with water, and that is why from the space when you see the Earth, it looks blue in color, hence it is called the blue planet. All this we have discussed in our previous session. In today's session we will learn regarding the globes, that is spherical model of the Earth, and the maps, that is whole of the part of the Earth, that is flat surface. So we will learn regarding this in this session. Let's start with globes and maps. The Earth is a huge planet. बहुत बड़ा planet है. We cannot see the whole of it at once. So we use small model to see it entirely and to study about its different features. Earth इतना बड़ा है कि हम at a time सारी जगह को नहीं देख सकते, उसके बारे में स्टडी एक साथ नहीं कर सकते. So we take a small model of the Earth and we make the studies part by part. छोटे छोटे divisions में, for example, as I told you, there are 7 continents. उन 7 continents में अलग अलग countries हैं. तो पहले एक कंट्री के बारे में स्टडी करते हैं, फिर दूसरी कंट्री के बारे में, क्योंकि कॉन्टिनेंट्स में सिर्फ एक कंट्री नहीं होती है, बहुत सारे कंट्रीज एक ही कॉन्टिनेंट में होती है. फॉर एग्जाम्पल, एशिया इज अ कॉन्टिनेंट. In Asia, you have India, Pakistan, China, Nepal. All these countries they belong to Asia only. ये सारे countries जो मैंने नाम लिए ना, वो सारे एशिया के ही countries हैं, करेक्ट? तो now, is it possible कि सारे इन अलग अलग countries के बारे में एक साथ आप study कर सकते हो? No. So we study about these different places with help of different maps or the globe. Now globe, what is a globe? It is a spherical model of the Earth. So we study all these features in different ways. Globe is a spherical model of the Earth. Spherical model मतलब round, जो होता है ना हार्ड से राउंड कहते हैं. Let me show a globe to you. This is a globe. Spherical means see round, ball जैसा दिख रहा है. Is it the round circle that is drawn? No, it is a hard ball. Hard ball ये है जिसको मैं ऐसे रोटेट भी कर सकती हूँ, करेक्ट? So now this is a spherical model of the Earth and it is called a globe. इसको हम क्या कहते हैं? Globe. Now it shows different countries, cities, landforms and water bodies and help us to find the location of different places around the world. इस ग्लोब के अंदर आप अलग अलग countries, see for example here you can see India, correct? Here you can see Iran, here you can see this yellow color is Russia. So different countries you can locate on the globe, different cities. जितना बड़ा आपका ग्लोब होगा उतनी ज्यादा डिटेल्स आपको मिल पाएगी. छोटा ग्लोब होगा तो शायद कंट्रीज आप लोकेट कर पाओ बट सिटीज नहीं होंगे.
सी हियर इन इंडिया मेजर सिटीज जो है वो लोकेट किए हैं. फॉर एग्जाम्पल इंडिया के अंदर यहाँ अहमदाबाद दिखाया गया है, बट गुजरात जो है उसमें अहमदाबाद के अलावा राजकोट है या फिर जामनगर है. ऐसे छोटे छोटे सिटीज को नहीं दिखाया गया, कुछ मेजर सिटीज को ही दिखाया गया है. So in a globe you can see different countries, cities, landforms. What are landforms? In land के ऊपर you can see deserts, you can see plains, you can see grasslands. करेक्ट, जहां पर बहुत सारे ग्रासेस ग्रो करते हैं उन्हें ग्रासलैंड कहते हैं. You can see mountains, you can see hills, you can see plateaus. All these landforms you can see them on the globe also. And it will help you to find the location of different places around the world. पूरे वर्ल्ड में अलग अलग प्लेसेस कहाँ पर है ये आपको लोकेट करने में, फाइंड करने में मदद करेगा. See, here is India. Then where is Africa? Here you can see it is Africa. India इस तरफ है, इस तरफ अफ्रीका है. So in this way, अब आपको पता चल गया कि इंडिया के बाद अफ्रीका आता है. Right? So you can locate different places with the help of a globe. Now, a globe does not show all the places located on the earth in detail. अर्थ के ऊपर की सारी प्लेसेस जो है वो एक साथ लोकेट नहीं कर पाते हैं, डिटेल में आप नहीं देख सकते. A map help us to study a part of the earth in detail. But maps जो होते हैं उसमें सारी डिटेल्स आपको दी गई है. See for example, ये एक ग्लोब है. Now in this globe you can see this part. इस तरफ का पार्ट आपको दिख रहा है. क्या पीछे की तरफ का पार्ट आपको विजिबल है? Can you see that? No. तो जो ग्लोब है उसके अंदर only a part can be seen at a time. At a time में सिर्फ एक पार्ट आपको दिखेगा, पीछे का पार्ट नहीं दिखेगा. पीछे का पार्ट अगर आपको देखना है तो you have to rotate it. अगर मैंने टर्न किया तो now this part is visible, the other part is not visible. Similar way, as I told you, see for example, here in India, this is India, pink color. इस इंडिया में क्या सारी डिटेल्स आपको इस ग्लोब में दिखेगी? आप अपना सिटी राजकोट क्या इस मैप के अंदर दिख रहा है आपको? ग्लोब के अंदर जो इंडिया है उसमें आपको राजकोट कहीं भी है? No, it is not there because it shows only few details. But maps जो होते हैं उनमें सारी डिटेल्स अवेलेबल है. See for example, this is a map of only India. ये मैप जो है सिर्फ और सिर्फ इंडिया का है. तो अब इसमें इंडिया के मैंने अलग अलग स्टेट्स यहाँ पर लिखे हैं, जैसे कि गुजरात, राजस्थान, ऑल दीज. करेक्ट. मैप्स जो है वो अलग अलग टाइप्स के होते हैं. ये पर्टिकुलर एक कंट्री का, दैट इज इंडिया का ही मैप है ये. दिस इज ओनली द मैप ऑफ इंडिया. यू कैन फाइंड द वर्ल्ड मैप ऑल्सो. अगर वर्ल्ड मैप आप लेते हो तो ये जो ग्लोब में पीछे की तरफ का आपको नहीं दिख रहा था, वो वर्ल्ड मैप अगर आप लोगे तो वो फ्लैट सरफेस के ऊपर होता है. तो पूरा वर्ल्ड एक ही मैप में आप देख सकते हो. उसको रोटेट करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि इट इज ऑन द पीस ऑफ पेपर, और इट इज समटाइम्स ऑल्सो ऑन द some people they are so clever, they draw it somewhere on the ground, on the sand near the beach. तो ये भी हो सकता है. तो फ्लैट सरफेस के ऊपर पूरा वर्ल्ड आप एक साथ ड्रॉ कर सकते हो. नो नीड टू रोटेट. दूसरी अलग अलग जगह को देखने के लिए रोटेट करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि इट इज ऑन द फ्लैट सरफेस. फ्लैट सरफेस के ऊपर पूरा वर्ल्ड आ गया एक ही बार में. एंड इट इज ड्रॉन, ये ड्रॉ किया हुआ है. नाउ मैप्स. मैप इज अ ड्रॉइंग ऑफ द अर्थ और द पार्ट ऑफ इट ऑन द फ्लैट सरफेस. ये मैप्स जो है वो फ्लैट सरफेस जैसे कि आपका पेपर है उनके ऊपर ड्रॉ किए गए. इट शोज द डिटेल ऑफ द प्लेस ऑन द अर्थ. मैप्स अलग अलग टाइप के होते हैं.
वर्ल्ड मैप लोगे तो पूरा वर्ल्ड दिखेगा, सिर्फ एक पर्टिकुलर कंट्री का मैप लोगे, एज आई शोड यू इंडिया का, तो सिर्फ एक कंट्री की डिटेल्स मिलेंगी। आपको अगर चाहिए तो आप अपने स्टेट का भी मैप ले सकते हो। योर स्टेट फॉर एग्जाम्पल इट इज गुजरात, तो सिर्फ गुजरात का मैप भी अवेलेबल है, करेक्ट। सो सारी डिटेल्स जो है वो आपको मैप्स में मिल जाएंगी। इट शोज द डिटेल्स ऑफ अ प्लेस ऑन द अर्थ। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप्स। मैप में भी अलग अलग टाइप्स होते हैं। some of them show the countries, states and cities, while the others show the landforms such as mountains and hills. मैप में अलग अलग टाइप होती है, जैसे कि मैंने आपको ये मैप जो दिखाया, here you can see the different states of India. इंडिया के अलग अलग स्टेट्स दिख रहे हैं। सो इस तरह अलग अलग स्टेट्स के मैप होते हैं। देन दे शो यू द सिटीज, दे शो यू द कंट्रीज, ऑल दीज। अगर आप वर्ल्ड मैप लोगे तो उसमें अलग अलग कॉन्टिनेंट्स या अलग अलग कंट्रीज आपको दिखेंगे। अदर मैप इज विच शोज द लैंडफॉर्म। उस मैप के अंदर आप देख सकते हो कि कहां पर माउंटेन्स है, कहां पर रिवर्स है, कहां पर प्लेन्स है। प्लेन्स मतलब कि फ्लैट लैंड सरफेस, जहां माउंटेन्स नहीं है या डेजर्ट नहीं है। डेजर्ट मतलब रण, जहां पर सिर्फ रेत होती है। तो these are the different types of map. Some maps show the boundaries of different countries, states, cities. Some maps show the physical features. मतलब कि वहां पर डेजर्ट है, फॉर एग्जाम्पल राजस्थान, इट इज अ डेजर्ट एरिया। तो डेजर्ट एरिया, माउंटेन्स होते हैं। इंडिया के नॉर्थ में हिमालयाज है, वहां पर माउंटेन एरियाज है। तो ये सारी चीजें दिख रही हैं। सो दे शो डिफरेंट लैंडफॉर्म्स। मैप्स आर ऑफ डिफरेंट साइजेस। अलग अलग साइज के भी मैप होते हैं। स्मॉल मैप कैन बी फोल्डेड एंड कैरीड इजीली। फॉर एग्जाम्पल दिस मैप। इस मैप को अगर मैं कहीं पर ले जाती हूँ, आई वॉन्ट टू ट्रेवल इन इंडिया ऑल द प्लेसेस, ऑल द स्टेट्स। इंडिया के अलग अलग स्टेट्स में मुझे ट्रेवल करना है। आई विल स्टार्ट माई जर्नी फ्रॉम गुजरात। गुजरात से मैं अपनी जर्नी स्टार्ट करूंगी। नाउ फर्स्ट आई हैव टू डिसाइड कि मुझे राजस्थान की तरफ से स्टार्ट करना है या गुजरात से नीचे महाराष्ट्र की तरफ स्टार्ट करना है। सो with the help of this map I can locate कि अगर मुझे राजस्थान जाना है तो किस तरफ जाना है, अगर मुझे महाराष्ट्र की तरफ जाना है तो किस तरफ जाना है। सो मैं क्या करूंगी, इस मैप को इजीली आई कैन फोल्ड इट एंड कीप इट इन माई बैग एंड टेक इट एनीवेयर, कहीं पर भी ले जा सकती हूँ। बट देयर आर सम बिग मैप्स ऑल्सो जो आपको स्कूल में स्टडीज के लिए टीचर यूज करती है। वो बड़े बड़े बोर्ड की तरह होते हैं, रोल करके रखते हैं, वो बिग मैप्स भी होते हैं। देयर आर लार्ज मैप्स टू दैट कैन बी हंग ऑन द वॉल ऑफ अ क्लासरूम एंड मेक स्टडी इन द रूम। तो क्लासरूम में बोर्ड के ऊपर हैंग करके उन मैप्स में से आपको स्टडी भी करवाते हैं टीचर्स, राइट। सो मैप्स आर ऑफ डिफरेंट साइज। दीज मैप्स आर कॉल्ड वॉल मैप्स। जो वॉल के ऊपर हैंग करके आप स्टडी के लिए यूज करते हो, उन मैप्स को वॉल मैप्स कहते हैं। अ बुक ऑफ मैप इज कॉल्ड एन एटलस। एज आई टोल्ड यू, मैप्स में अलग अलग मैप होते हैं, करेक्ट, जो अलग अलग कंट्रीज को दिखाए, अलग अलग स्टेट्स को दिखाए, पूरे वर्ल्ड को दिखाए। फिर दे शो यू ऑल्सो द लैंड फॉर्म्स और द फिजिकल फीचर्स। तो ये अलग अलग मैप्स होते हैं। तो इन सारे मैप्स को इकट्ठा करके एक बुक बनाई गई है which will help you to know about our earth, and this book is called an atlas. What is it called? It is called an atlas. Now we locate the places with the help of directions. हम किसी भी जगह जाना चाहे तो उसके लिए डायरेक्शन पता होनी चाहिए। Why direction is important? If I tell you, come to school from your home, but you don't know the way to come from your home to school,
आपको रास्ता नहीं पता है, तो विल आई गाइड यू कि आप अपने घर से बाहर निकलो, टेक अ राइट टर्न, टेक अ लेफ्ट टर्न, वॉक स्ट्रेट, and then on the left hand side our school is located. It is possible only for some students, but क्या सारे बच्चों का घर इसी तरह से आता है? No. For that you must know the direction, कि आपका घर कहाँ पर located है, whether your house is located in the east, west, north or south. See, these are the four main directions. Up you have north, east, here you have south, and here you have west. So now, as I told you in the map, now this is a map of India. Up you have north, this is east, this is west, and down you have south. So now from Gujarat, if I say Delhi, so Delhi is in the north. गुजरात से अगर आप देखोगे तो दिल्ली नॉर्थ में आता है, बट सेम अगर मैं जम्मू कश्मीर से दिल्ली के बारे में बोलूं तो जम्मू कश्मीर हियर इट इज इन द नॉर्थ, तो वहां से दिल्ली कहां पर आता है? नीचे की तरफ, टुवर्ड्स साउथ. सो गुजरात से दिल्ली नॉर्थ में आता है, बट जम्मू कश्मीर से अगर आप दिल्ली के बारे में बोलो तो इट इज इन द साउथ. क्लियर? सो इस तरह ये डायरेक्शंस बहुत जरूरी है. आपको डायरेक्शन पता होनी चाहिए कि वेयर यू आर लोकेटेड, आप कहां पर हो, और आप जहां पर लोकेटेड हो वहां से आपको नॉर्थ में जाना है, साउथ में जाना है, ईस्ट में जाना है या वेस्ट में जाना है, ये आपको पता होना चाहिए. सो दीज डायरेक्शंस हेल्प यू टू लोकेट डिफरेंट प्लेसेस. N represents north, E represents east, S represents south, and W represents west. So these are the four main directions. We can also use a compass to find direction. I had shared the picture of compass in the PPT. कंपास एक ऐसा डिवाइस होता है जिसकी हेल्प से आप डायरेक्शन, अगर आप कहीं खो गए हो, करेक्ट, तो आपको डायरेक्शन अब अगर नहीं पता है तो अगर आपके पास कंपास है तो आप उस कंपास की हेल्प से डायरेक्शन लोकेट कर सकते हो. आप कहां पर हो ये आप फाइंड कर सकते हो. A compass looks like a watch and has a needle that always points towards north. कंपास एक वॉच की तरह दिखता है और उसकी जो नीडल होती है ना, सुई, वो ऑलवेज नॉर्थ की तरफ पॉइंट करती है. तो अगर एक बार नॉर्थ के बारे में पता चल गया तो बाकी के डायरेक्शन इजीली फाइंड आउट हो जाएंगे. नॉर्थ से ऑपोजिट डायरेक्शन में साउथ आता है, देन दिस साइड इट इज ईस्ट एंड दिस साइड इट इज वेस्ट. सो इस तरह से एक बार अगर आपको नॉर्थ डायरेक्शन के बारे में पता चल गया तो यू विल बी इजीली लोकेटिंग द अदर डायरेक्शंस आल्सो. Once we know the north direction, we can easily find the other three directions. Sailors use the compass to find the directions while sailing. Sailors, people who work on the ship, boat, cruise, they are called sailors. So when they are sailing in the boat, they don't have any roads over there. Water bodies के ऊपर roads नहीं है, करेक्ट. कोई बिल्डिंग भी नहीं है कि भाई इस बिल्डिंग से राइट लेना है, उस बिल्डिंग से लेफ्ट लेना है. नो. सो दिस कंपास इज वेरी मच यूजफुल फॉर दीज सेलर्स, क्योंकि जब वो सेल कर रहे होते हैं रिवर में या ओशियन में, सी में, तब उनके पास कोई डायरेक्शन नहीं होती है एक्सेप्ट दिस कंपास. ये एक कंपास होता है, उसकी मदद से ये लोग डायरेक्शंस डिसाइड करते हैं और उस डायरेक्शन में उन्हें कहाँ, किस डायरेक्शन में सेल करना है, ये फाइंड आउट करके उस जगह तक पहुंचते हैं. सो हियर वी कम टू द एंड ऑफ द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस चैप्टर. Along with this video, I'll be sending a PDF in which I have given the homework. I hope you read the instructions properly and do the work by your own self. And one more thing, I would request you to read the chapter till where I have explained in this video, so that
next session, when we discuss the exercise of this chapter, you will be able to answer the questions easily. Correct? But I request you that you have to do the homework by your own self with good handwriting and no spelling mistakes. Okay? If you are having any doubts, you can contact me. And next session, we will take up with the exercise part of this chapter. I hope you will read the chapter till where I have explained in this video. Okay kids? If you have liked this video, please click on the like icon. Bye. See you in the next